जीव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। 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 शिव शिव शंकर हर हर महादेव। 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 हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। 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 शिव शिव शंकर हर हर महादेव। 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 हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि बोल हरि बोल। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। 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 हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। 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 शंकर भगवान की, भाव भावेश्वर भगवान की, भगवती पीताम्बरा मात की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, लीला पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। हरि बोल। नौमीड्यदे प्रभपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावदंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजेकबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लगे। જીવોના જન્માંતરીય પુણ્યોનો જ્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે જ શ્રીમદ ભાગવતી કથા શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય મળે છે. બહુ જ ભાગ્યશાળી છો આપ લોગ જે શ્રીમદ ભાગવતી કથા શ્રવણ કરવા માટે અહીંયા બેસેલા છો. ધ્યાન આપો, ગઈકાલે મેં તમને ભાગવતનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું. ભગવાન સ્વયં ભાગવતના રૂપમાં અવતરિત થયેલા છે. વેદવ્યાસ સંકેત કરે છે મહાત્મ્યમાં, પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત મહાત્મ્યમાં, એષા વાંગ્મયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરે. એષા અંગુલી નિર્દેશાત્મક છે આ શબ્દ. જ્યારે સમ્મુખ કોઈ વસ્તુ હોય ત્યારે આપણે આંગળી બતાડીને કહીએ છીએ કે ઇદમ પુસ્તકમ, આ ચોપડી છે. અગર બહુ લાંબે હોય, દેખાતી ન હોય તો ઇદમ શબ્દનો પ્રયોગ ત્યાં થતું નથી. અંગ્રેજીમાં ધીસ ઇઝ એ બુક આપણે કહીશું જ્યારે સામે વસ્તુ પડી હશે. પરંતુ અગર વસ્તુ આપણાથી દૂર હોય તો ત્યાં ધીસ શબ્દનો પ્રયોગ નથી થતો, ધેટ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. ધેટ ઇઝ એ બુક. આ અંતર છે ઇદમ શબ્દમાં. એષા પ્રત્યક્ષા વર્તતે, સામે છે, સન્મુખ છે, અનુભૂતિ સિદ્ધ છે. એટલા માટે કહી રહ્યા છે આ ચોપડી નથી, માત્ર શ્રીમદ ભાગવતની આ કિતાબ, એને ચોપડી માત્ર ન સમજો. આ સાક્ષાત ભગવાનનું શ્રી વિગ્રહ છે. શું છે? ભગવાનનું શ્રી વિગ્રહ છે. અને જો અગર ભગવત સ્વરૂપ ન હોત તો એમાં સ્થાયિત્વ પણ ન હોત. અને એનું આજે 5000 વર્ષથી વધારેનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, છતાં પણ આપણે સૌ કોઈ બેસીને એને સાંભળીએ છીએ અને નિત્ય નૂતન આપણને લાગે છે. તમે ઘણી બધી ભાગવતો ઘણી બધી વાર સાંભળો છો, સાંભળતા જ આવો છો. અને મેં પોતે પણ ઘણી ભાગવતો કરી દીધી છે અને હમણાં બી કરી રહ્યો છું ને આગળ પણ કરવાનો છું. છતાં પણ મને બોરિયત થતી નથી. એમ નથી લાગતું કે હું એકની એક વાત દરરોજ કર્યા કરવાની હોય. શા માટે? કારણ કે એમાં કંટાળાજનક કશું જ નથી. જે આપણું પોતાનું સ્વરૂપ છે, જે પોતાની વાત છે, પોતાને મનગમતી હોય જ છે. જે પોતાની વાત હોય, પોતાનો સ્વાર્થ હોય તો એ મનગમતું જ હોય. અણગમો પણ હોય તો પણ તમારે કરવા સિવાય છૂટકો નથી. તમે કરો જ કરો છો પેલા કામને. એવી જ રીતે આજે શ્રીમદ ભાગવત છે, એમાં અણગમો તો કશું છે જ નહીં. એ તો આપણું પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. અને પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની આનંદમય લીલાઓની અભિવ્યક્તિ છે. તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય પ્રકટ કરે છે આ વાતને. તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ, પરમાત્મા સ્વયં શ્રીમદ ભાગવતમાં તિરોહિત થઈ જાય છે, આવીને સંતાઈ જાય છે, એમાં વિરાજમાન થઈ જાય છે. જો તમારો પોતાનો અનુભવ તમને હશે, જે વાતમાં સત્ય હકીકત હોય, જે વસ્તુમાં તમને લાગતું હોય કે આ એવી રીતે જ હોવી જોઈએ અને આ જ વસ્તુ સાચી છે, તો તમારા બોલવામાં દમ રહેશે, તાકાત રહેશે. અને ખોટાપણું હશે તો
ભલે ને તમે બોમ્બ બરાડા કરીને જોર જોરથી ચીખતા રહ્યો તો પણ વાતમાં કઈ દમ निकलશે नहीं, कारण कि तुमने खबर है मामला गड़बड़ का है, ये तो झूठ मूठ का लिपापोती हो रही है, खोटू खोटू आप बोलिया करिए छे, बाकी साची हकीकत तो हमने खबर है कि एवं ज थयुं छे, एवी वस्तु छे। सत्य में ताकत होय अने परमात्मा श्री कृष्ण सत्य स्वरूप अने सत्य स्वरूप परमात्मा श्रीमद भागवत आख्य समुद्र में आवीने विश्राम लई रह्या छे। एटले एनी एक एक वाणी, एक एक श्लोक, एक एक शब्द एमां ताकत छे, शक्ति छे, बोध प्राप्त कराववानी शक्ति छे, अनुभूति कराववानी सामर्थ्य छे। अतएव ऐसा वांगमयी मूर्ति, ऐसा प्रत्यक्ष शब्दात्मक श्री विग्रह है भगवान नो। श्रीमद भागवत ना एकादश स्कंद में अष्टविध प्रतिमाओं नो विधान प्राप्त थाय छे। अर्थात भगवान ने उपासना करवी होय तो मूर्तिओ कई कई जातनी बनावी जोईए एनो संविधान एकादश स्कंद में जोवा मळे छे। एमां धातुमय मूर्ति होय, काष्ठमय मूर्ति होय, पाषाणमयी मूर्ति होय, रजतमयी मूर्ति होय, स्वर्णमयी मूर्ति होय, पारदमयी मूर्ति होय, ए बधी मूर्ति जुदा जुदा प्रकारनी होय। एवी ज रीते अहींया आज श्रीमद भागवताख्य मूर्ति तमे जोई रह्या छो, आ वांगमयी मूर्ति छे। कई मूर्ति छे? वांगमय। वांगमय एटले शब्दात्मक, शब्दमय विग्रह छे भगवाननो। आ शब्दमय विग्रह शब्दों में परमात्मा की अभिव्यक्ति नो स्वरूप अहिया प्रकट थई गयो छे। अने आ श्रीमद भागवत तमारा जीवन में अवतरित थाय एवी हूँ पोते प्रभु ने प्रार्थना करूं छूं। अने तमे जेटला पण आ पंडाल में बेसेला छो, तमे पोते संकल्प करशो कि भागवतमय अमारो जीवन बने तो आ प्रत्यक्ष विराजमान छे एटले तथास्तु कही देशे। शुं कहेशे? तथास्तु। जैसे तुम मुझसे कहो कि महाराज आशीर्वाद दो, बोल भाई क्या आशीर्वाद चाहिए? तो महाराज ये काम नहीं हो रहा है, काम हो जाए। तो महाराज सामने बैठा है, इसलिए क्या बोल देगा? तथास्तु। अगर सामने ना हो तो बोलेगे? बोलो मारो फोटो लईने बेही जाओ तो फोटामांथी अवाज आवशे? तथास्तु नहीं। अरे प्रत्यक्ष बेसेलो होय तो आवशे। एमां ज अहींया श्रीमद भागवतना रूपमां प्रत्यक्ष भगवान विराजमान छे, એટલે તમે જે માંગી લેશો તે તમને મળી જશે અહીંયા। અને કહી દેશે તથાસ્તુ। આટલી શક્તિ છે શ્રીમદ ભાગવત। लौकिक पदार्थों की शू बात करो छो? ए तो मळवाना ज छे, परंतु श्रीमद भागवत थी तो तमे साक्षात परमात्मा नो साक्षात्कार करी शको छो। लौकिक पदार्थों एना आशीर्वाद थी तमने एम ज मळी जवाना। जेम समझो कोई माणस फूल तोड़वा गयो, हवे ज्यारे चमेलीना अथवा जूहीना मोगराना पुष्पो तोड़तो होय तो एक एक फूल ने एम लईने सूंघे छे के? बोलो नथी सूंघतो, छतां पण एने सुगंध आवे छे के नहीं? जवाब आपो ने विचारीने। आवे के नहीं? आवे। अच्छा, ए फूल कोना माटे लईने जाय छे? भगवानना चरणों में धराववा माटे, एमने एमनी पूजा करवा माटे, एमना माटे लई जाय छे। पूजा माटे लई जाय छे फूल। लक्ष्य छे भगवाननी पूजा, उद्देश्य छे भगवाननी पूजा, पण कोई नाकमां रूई तो भरायेली नथी, सुगंध तो आपणने पण मळे ज छे। एनो मतलब अरे भगवान भागवत ना स्वरूप में विराजमान छे, तमे एनी भक्ति
ભક્તિ કરો અને એને પામવાની વાત કરો. એ સંસારના જે ભોગો છે, પદાર્થો છે, એ તો સુગંધની તેમ તમને મળી જ જવાના છે. એના માટે જુદો પ્રયત્ન કરવાની जरूरत नहीं. जिस तरह से हमें सुगंध अपने आप मिलती है, लक्ष्य तो भगवान की पूजा होता है, किंतु सुगंध हमें आनुषंगिक फल के रूप में मिल जाती है. वैसे ही भागवत की भक्ति करते हुए हम परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहें, प्राप्त करना चाहें, तो भोग तो अपने आप वो आनुषंगिक फल के रूप में मिल ही जाएंगे, सुगंधी की तरह आ ही जाएंगे. तब भागवत है आपको लौकिक भोगों को प्रदान करने वाला ग्रंथ. भागवत है आपको अलौकिक अप्राकृतिक दिव्याति दिव्य भोगों को प्रदान करने वाला ग्रंथ. भागवत है आपको साक्षात परमात्मा को आपकी गोद में बैठाने देने वाला ग्रंथ. भगवान को आपकी गोद में बैठा देने की सामर्थ्य अगर है तो किसमें है? श्रीमद् भागवत में. लौकिक भोगों के लिए देखिए आप, वो धुंधुकारी, उसका बाप आत्मदेव हाय बेटा कर रहा था. बेटा प्राप्त हो गया महात्मा की कृपा से. एक तो गाय को ही बेटा हो गया, पत्नी को तो बेटा हुआ नहीं क्योंकि उसने फल खाया नहीं, दे दिया गाय को. परिणाम स्वरूप गोकर्ण का जन्म हो गया. किंतु धुंधुली ने अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र मान करके धुंधुकारी नाम रख दिया और कह दिया आत्मदेव से ये तुम्हारा ही पुत्र है. धोखा, हमेशा धोखा होता है. धोखा, हाँ, हमेशा क्या होता है? धोखा ही होता है. आप ये मत समझ लीजिए कि कोई अच्छी जगह उस बात को लिख दिया गया या अच्छे आदमी के मुंह से कहलवा दिया गया तो वो धोखा नहीं रहेगा. ऐसा नहीं है. भागवत में भी लिखा है तो भी धोखा है, क्योंकि किया ही गया धोखा था. पति से धोखा किया गया था. महात्मा ने तो फल दिया था, उसने तो गाय को खिला दिया, स्वयं खाया नहीं. और परिणाम स्वरूप जिस पुत्र को अपने पुत्र के रूप में प्रकट किया वो बहुत बड़ा धोखा था. और उस धोखे का परिणाम ये हुआ कि उसकी माता को स्वयं आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ा. झूठ भरे એનો આશ્રય લેશો તો પરિણામ આત્મહત્યા, પોતાનું પતન નિશ્ચિત રૂપથી થશે જ થશે. એટલે કોઈ દિવસે झूठનો આશ્રય લેવું જોઈએ નહીં. કોઈની સાથે છેતરપિંડી કરવી જોઈએ નહીં. કારણ કે તમે બીજાને છેતરશો, कोई तमने आवी नहीं छेतरी जाए. महाभारत में एक हंस गीता आती है, हंस गीता का उपाख्यान आता है. उसमें बड़ा अच्छा एक वाक्य कहा गया, ठगने वाला हमेशा जागता है, ठगाने वाला एक बार जागता है. ठगाने वाला एक बार जागता है, लेकिन ठगने वाला हमेशा जागता है. भाई मैंने ठगा लिया थोड़ी देर के लिए, चलो मैं तो जाग लूंगा, दुख होगा कि देखो मेरे को कोई ठग करके ले गया, मेरा पैसा मार गया, मेरी ये कर गया, मेरा वो कर गया, जो भी कर गया वो ठग करके. लेकिन जो ठग के गया है वो हमेशा के लिए जागेगा, क्योंकि उसकी आत्मा उसको कचोटेगी कि मैंने किसी भले आदमी को ठगा, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये काम अच्छा नहीं किया. ये उसकी अंतरात्मा, उसका अंतस उसको बार बार चोट पहुंचाता रहेगा. इसलिए ठगाने वाला एक बार जागेगा, ठगने वाला हमेश माटे, उसको हमेश के लिए जागना पड़ेगा. धुंधुली ने अपने पति को ठगा. पति तो गोकर्ण की कृपा से भगवत भक्त हो गया, अपने लड़के की ही कृपा से. बड़ा दुखी था, बैठा हुआ है आत्मदेव, अपने
धुंधुकारी पुत्र के अपयश के कारण, उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण बड़ा परेशान बैठा है। इतने में ही गोकर्ण आ गए और गोकर्ण ने कह दिया, हे पिताश्री, किस लिए उदास बैठे हुए हो? न सुखम देवराजस्य। देखिए कितना अच्छा बेटा, भगवान का बेटा हो तो गोकर्ण जैसा हो। पिता की उदासीनता में आकर के कितना अच्छा उपदेश कर रहा है, उसे संबल बनकर के खड़ा होता है उसके पास में और कह रहा है, न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकान्त जीविनः। बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं। देखिए, हे पिताजी, न सुखम देवराजस्य, सुखी देवराज इंद्र भी नहीं है। अच्छा, घણા બધા લોકો એમ માનતા હોય કે જેના પાસે પુષ્કળ નાણું હોય તે વધારે સુખી। આ જો ને તમે આ બે ભાઈઓ, એક બાપ બિચારો કમાવીને છોડી ગયો, મૂકી ગયો, અને આ બે ભાઈઓને જો ને, मेरा संकेत समझ गए होंगे आप, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। कौन दो भाई है? क्या कर दिए? कबाड़ा। अब आप सोचेंगे कि इनके पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए बहुत सुखी होंगे, वो आपसे और मेरे से ज्यादा दुखी है। और गांव की चिंता अलग है, क्योंकि अगर गांव वाले समझ गए कि अब इन शेरों में दम नहीं है, तो फिर वो सब गीदड़ बन जाएंगे सामने वाले, और सब ग्राहक शेर बन करके झपट लेंगे। पैसा होना सुख और शांति का प्रतीक नहीं है। पैसे का अभाव भी बुरा, और पैसे का प्रभाव भी बुरा। अगर पैसे का अभाव है, अब मैं तुम्हें कहूं तुम गोविंद का भजन करो, तुम शिव शिव शंकर महादेव करो, तो तुम ऐसा बताओगे मेरे को, आमा कशु નથી તો મોડાથી शिव शिव शंकर ક્યાંથી निकलવાનું છે? कहां से निकलेगा? भूखे भजन होए नहीं गोपाला, ये लो अपनी कंठी और माला। कंठी माला को भी उतार के सौंपने में संकोच नहीं होगा। अभाव ये भी अच्छा नहीं, और धन का प्रभाव ये भी अच्छा नहीं। पैसा तुम पर हावी हो जाए और वो तुम्हें नचाने लग जाए तो भी समझो मामला गड़बड़। तब अभाव प्रभाव के बीच में सबसे बढ़िया है स्वभाव। अपने स्वभाव में स्थित रहिए और आनंद का अनुभव कीजिए। न सुखम देवराजस्य, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है, और न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। यत् सुखम वीतरागस्य, कितनी बढ़िया बात कही है गोकर्ण ने। जब इसका नाम ही बहुत बढ़िया है, गोकर्ण। वैसे तो गाय के पेट से पैदा हुआ था और कान गाय की तरह से लंबे लंबे थे, इसलिए प्रसिद्ध हुआ संसार में गोकर्ण इनका नाम। वस्तुतः तुम देखोगे इनके अध्यात्म जीवन को तो भी आपको लगेगा कि सचमुच ये गोकर्ण है।
गो नाम है इंद्रियों का और कर्ण नाम है कर्णधार का। तब गोकर्ण क्या है? इंद्रियों के कर्णधार है, निग्रहिता है, कंट्रोलर है, शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप चैतन्य है। ऐसे गोकर्ण ही तो ये बात कह सकते हैं अपने पिता से कि न सुखम देवराजस्य, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं, जो सुख एक वीतराग महात्मा को है। यत् सुखम वीतरागस्य, वीतराग विगतः राग, जिसमें से राग नाम का दोष हमेशा के निकल गया है, उसका नाम वीतराग होता है। भोले बाबा ने बहुत अच्छी बात लिखी है वेदांत चंद्रावली में, यदि राग विषयों में करेगा राग बढ़ता जाएगा, यदि द्वेष विषयों से करेगा द्वेष दृढ़ता पाएगा। तज राग दे तज द्वेष दे, मन मैल सब धुल जाएगा, बाला चरण भोला ग्रहण कर शांति अक्षय पाएगा। अगर तुमने विषयों में राग किया तो राग बढ़ेगा, उसका परिणाम विक्षेप आएगा। अगर तुमने द्वेष किया तो द्वेष बढ़ेगा, उसका परिणाम अशांति और उद्वेग आएगा। इसलिए भाई, तज राग दे तज द्वेष दे, तुम राग भी छोड़, तू द्वेष भी छोड़। अगर इसको छोड़ देगा तो मन मैल सब धुल जाएगा, मन का जो मैल है वो स्वच्छ हो जाएगा। शिक्षा लेना हो तो बालक से शिक्षा लो। एक छोटा बालक, न उसमें राग होता है और न उसमें द्वेष होता है, बस बाला चरण भोला ग्रहण कर शांति अक्षय पाएगा। तुम बालक से ये आचरण सीख लोगे तो निश्चित है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो एकांत में बैठ करके और प्रभु का स्मरण कर लेता है, चिंतन कर लेता है, बस उससे बड़ा सुखी संसार में और कोई नहीं हो सकता है। पिताजी, छोड़िए इस झंझट को और निकल जाइए। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, कौन किसका धन है। छोड़िए इस मोह माया को, प्रपंच को, और अपने पुत्र की प्रेरणा से देखिए, वो घर छोड़ करके निकलते हैं और पूछते हैं, अगर मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा तो करूंगा क्या? तो बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं गोकर्ण। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। पुत्र हमेशा पिता से शिक्षा लेते आए हैं, संसार का नियम है। और हर बाप अपने बाप होने का दावा पेश करता रहा है बेटे के सामने। हर पिता को देखिए, अगर उसके सामने पुत्र थोड़ी सी शिक्षा की बात कर देगा तो पिता के अहम पर चोट लगेगी और तत्काल कहेगा, तो हूं हम जितना है जात ने उतारो बाप, उतारो बाप चुप, तू मने शिखामा आपवा માટે આવ્યો છે। तत्काल पिता के अहम पर चोट पहुंचेगी। लेकिन भाग्यशाली है वह पिता जिसको गोकर्ण जैसा पुत्र मिला हो और जहां अहम पर चोट नहीं लग रही हो। पिता लोग तो हमेशा पुत्रों को उपदेश करते ही रहे, यहाँ पुत्र उपदेश कर रहा है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। हे पिताजी,
आप चिंता न करें। आप जब जाएंगे जंगल में तो आपके लिए कर्तव्य बोध भी मैं आपको दे रहा हूं। सुनिए आप, धर्मम भजस्व, आप धर्म का आश्रय लीजिए। त्यज लोक धर्मान, आप लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए। तब फिर तुम किस धर्म की मेरे को बात कह रहे हो जिसका मुझे आश्रय लेना है? तो देखिए गीता के 18वें अध्याय में जिस तरह परमात्मा कृष्ण ने संकेत किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलिए, मामेकं शरणं व्रज। ये सबसे बड़ा धर्म, इसको कहेंगे शरणागति धर्म। क्या बोलेंगे? शरणागति। इसी की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं गोकर्ण, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्मं भजस्व। જો ભાઈ આ ભાગવતની કથામાંથી દરરોજ એકાદ શ્લોક બી યાદ થઈ જશે તો મને એમ લાગશે કે તમે ભાગવત સંભળાવવાનું સાર્થક થઈ ગયું। તો કઈ એકાદ તો યાદ રાખો। આ શ્લોક યાદ કરી ચાલો, धर्मं भजस्व सततं। बहुत सीधा श्लोक है, सब बोलो। त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। साधु पुरुषोनी सेवा करो અને કામ તૃષ્ણાના ભાવની જે કામના છે, તૃષ્ણા છે જેમાં બસેલી, એનો ત્યાગ કરો, એને ત્યજી નાખો। સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણા। અહીંયા જય જે ધાતુ છે, જય ધાતુ આ હનનાર્થક છે, એટલે ખલાસ જ કરી નાખો। કામના ભાવને પણ ખલાસ કરો અને તૃષ્ણાના ભાવને પણ ખલાસ કરો। કામનો ભાવ કયો ખલાસ કરવાનો એ બી યાદ રાખજો। કામ એટલે માત્ર સેક્સ નથી। કામનો બહુ મોટો વ્યાપક અર્થ હોય છે। ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષજન્યમ સુખ વિશેષમ જ્ઞાનમ કામઃ। ન્યાય દર્શનકારે કામ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે। કામ કોને કહેવામાં આવે? લોકો માત્ર કામનો અર્થ સેક્સ સુધી જ રાખે છે, બટ નોટ સેક્સ। આ કામ સેક્સ માટે નથી, આ સુખ વિશેષ માટે છે। ઇન્દ્રિય અને અર્થ, જેમ સમજો, તમને એક દાખલા તરીકે સમજાવું। આ ફૂલ છે, જુઓ એને, આ શું છે? ફૂલ છે। અને આ ફૂલની પાસે કઈ ઇન્દ્રિય ગઈ જે તમને આ જ્ઞાન આપ્યું કે આ ફૂલ છે? આંખ ગઈ પેલા, આંખે જઈને જોયું કે આ ફૂલ છે, પરંતુ આ ફૂલ સુગંધિત છે કે નહીં આ જ્ઞાન તમને કોણ આપે? ના। ત્યારે પુષ્પ થઈ ગયો વિષય, ઇન્દ્રિયો થઈ ગઈ એનું પ્રત્યક્ષ કરવાનું કારણ। ધ્યાન આપજો। હવે આ બંને ભેગા થયા, ફૂલ અને નાક, ઘ્રાણેન્દ્રિય અને નાક, આ બંને ભેગા થયા તો એક અનુભૂતિ થઈ, ગંધવાન અયમ પુષ્પઃ। આ પુષ્પ સુગંધિત છે, આ પુષ્પ સુગંધિત છે, સારી સુગંધી છે, એમાં ખૂબ જ સુગંધ છે। આ જે વિષય પ્રત્યક્ષ થયું તમને કે આ બહુ જ સુગંધી વાળો છે, બહુ જ સારો પુષ્પ છે, આ જે સુખ વિશેષનું જ્ઞાન તમને થયું એનું નામ છે કામ। એનું નામ શું? કામ। હવે આ માત્ર પુષ્પ માટે જ નહીં, એવી જ રીતે તમે કોઈ મિષ્ટાન લઈ લો, रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है। अब रसगुल्ला हो गया विषय
और प्रत्यक्ष करने वाली इंद्रिय हो गई रसनेन्द्रिय। अब रसनेन्द्रिय जाकर के जो ही रसगुल्ला का स्पर्श कर देती है तो कहते मजा पड़ी हो, बहुत फाइन, આજે મજા પડી, બહુ ફાઇન છે, આજે સુખ વિશેષનું જ્ઞાન તમને થઈ ગયું છે, એનું નામ છે કામ। એટલે નૈયાયિકો કામ શબ્દને બહુ વ્યાપક માનીને કહી રહ્યા છે, ઇન્દ્રિયાર્થ સન્નિકર્ષમ જન્યમ સુખ વિશેષમ જ્ઞાનમ કામઃ। આ કામ છે અને આ કામ બધે જ ઠેકાણે જોડાયેલો છે, તો આપણે એની તૃષ્ણાનો ત્યાગ બધા જ ઠેકાણેથી કરવાનો રહેશે। सभी स्थानों से इस काम विशेष की तृष्णा का त्याग होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। बोलो सब, जहि काम तृष्णा। જહી એટલે ખલાસ કરવું, આ કામને અને તૃષ્ણાના ભાવને સમાપ્ત કરવું, ખલાસ કરવું। સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન। अब इसमें एक और बढ़िया उपाय बता रहा हूं तुमको, देखो बहुत मजे की बात। चाकू गिरा खरबूजे पर, कलिंगर, कलिंगर खरबूजा समझ में आता है? साकर टेटी કહેવામાં આવે, સાકર ટેટી। હા હોય ને, આપણે આવે કે નહીં સાકર ટેટી? હવે સાકર ટેટીના હાથમાં લઈ લો ને ચાકુ એમ પકડીને ઉભા રહ્યો, ઉપરથી સાકર ટેટીને ચાકુ પર નાખો, બોલો कौन कटेगा? कौन कटी? साकर टेटी। अब साकर टेटी को नीचे कर लो, ऊपर से चाकू डालो, कौन कटी? काटना किसने है? साकर टेटी ने। चाहे नीचे से काटो चाहे ऊपर से काटो, चाहे ऊपर से साकर टेटी को पटको चाहे साकर टेटी के ऊपर चाकू को पटको, कटेगी कौन? साकर टेटी। कितना बढ़िया यहाँ के ऊपर उपाय बताया है। तुम काम तृष्णा को खत्म करना चाहते हो ना, नहीं हो रही ना तुमसे, चलो तुमको रास्ता बताते हैं हम। सेवस्व साधु पुरुषान। अरे साधु पुरुषों की सेवा में आ जाओ, महापुरुषों की सेवा में आ जाओ, उनके पास में आकर के साष्टांग प्रणिपात करके बैठ जाओ और उनसे कहो आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे, हम आपके चरणों में आ गए हैं। जो ही साधु पुरुषों के चरणों में आओगे काम तृष्णा अपने आप कट जाएगी, उसे काटने का अलग से प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोलिए ये धर्मम भजस्व, शरणागति रूप धर्म को स्वीकार कर लो तो लौकिक जितने भी धर्म हैं उन सब का त्याग हो जाएगा। साधु पुरुषों का आश्रय ले लो, काम तृष्णा का नाश हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। तीसरी लाइन ले रहा हूं, तीसरा पद। अन्यस्य दोष गुण, बोलिए। મને આ સંદીપભાઈ જરાય નથી ગમતું, મને રામભાઈ બહુ જ ગમે છે, મને ગોપાલભાઈ જરાય નથી ગમતું, ગોવિંદ મને બહુ ગમે છે। આ બે જ સેન્ટેન્સ તમારા મોઢાથી નીકળે છે, પણ તમે જુઓ બંનેમાં સ્તુતિ છે ને બંનેમાં જ નિંદા છે। કેવી રીતે? મને આ બેમાંથી એક ગમે છે, એનું નામ રામ છે ને એનું નામ સંદીપ છે કે ગોપાલ છે, જે બી સમજી લો। હવે મને રામ ગમે છે એમ તમે કહી દીધું તો પેલાની નિંદા પોતે જ થઈ ગઈ કે નહીં કે આ મને ગમતું નથી। અને તમે એકને કહી દીધું કે આ મને ગમતું નથી ગોપાલ, તો એનો મતલબ થઈ ગયો કે આ રામ મને ગમે છે। જ્યારે તમે એકની સ્તુતિ કરશો તો બીજાની નિંદા થવાની જ છે, પ્રચ્છન્ન રૂપથી તમને ખબર પણ પડતી નથી અને તમે બીજાની નિંદા કરી નાખો છો। અને જ્યારે બીજાની નિંદા કરતા હોય છો તમને ખબર બી પડતી નથી કે બીજાની સ્તુતિ તમારા દ્વારા થઈ જાય છે।
અહીંયા એકદમ સરળતમ ઉપાય બતાવી રહ્યા છે, બહુ જ સુંદર ગોકર્ણ, કે આ બંને જ વાતોથી તમે પર થઈ જાઓ, બંને જ વાતોથી. કારણ કે તમે સ્તુતિ કરશો તો બીજાની નિંદા થશે, દોષ લાગશે. એકને નારાજ કરશો, એક રાજી થશે, એક રાજી થશે તો બીજો નારાજ થશે. એટલે આ માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર શું છે? આપણે પ્રશંસા જ કરવી હોય તો પછી કોની કરવી જોઈએ? શિવ શિવ શંકર હર મહાદેવ. अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा. बहुत अच्छा संकेत कर रहे हैं. क्यों किसी के दोषों का या गुणों का चिंतन करके अपने आप का भार बढ़ा रहे हो अपने बुद्धि के अंदर, और क्यों सामान ढो रहे हो किसी दूसरे का? कुली क्या करता है? जो ट्रेन में से मुसाफिर उतरता है, दौड़ के जाता है और सामने से भार को उठाता है. वैसे ही क्या तुम कुली नहीं होगे किसी के दोषों का या गुणों का चिंतन करके? भगवान ने अच्छा भला आदमी बनाया और तुम क्या बन रहे हो? काहे को बन रहे हो भैया? छोड़ो ने, इससे तो अच्छा काम करो. बोला क्या काम करें? सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम. कितना बढ़िया है उसका. सेवा, सेवा करो, कथा, कथा का श्रवण करो, और ज्ञानामृत का रोज पान करो. अगर ये तुम करते रहोगे तो कुली बनने से बच जाओगे, दोषों का भार वहन करने से बच जाओगे और परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे. पिताजी छोड़िए ये सब और निकल जाइए यहाँ से, और देखिए गोकर्ण की प्रेरणा प्राप्त करके और पिता आत्मदेव घर छोड़ के निकल गए. अब रह गई वो धोखा देने वाली बुद्धि धुंधुली. धुंधुली धोखा देने वाली बुद्धि, छेतरपिंडी करने वाली बुद्धि, उसका नाम क्या है? धुंधुली. उसका बेटा आया धुंधुकारी. जहां दुर्बुद्धि होगी वहां के ऊपर धुंधुकारी ही तो पैदा होंगे. धुंधुकारी का अर्थ ही होता है धुन करोती थी धुंधुकारी. जो लोगों का सिर कुटवाता रहे, खुद सिर कूटता रहे, उसका नाम धुंधुकारी. जहां दुर्बुद्धि आ जाएगी, जहां एक दूसरे के अंदर लड़ाने की बात आ जाएगी, जहां एक दूसरे से छुपाने की बात आ जाएगी, जहां एक दूसरे को दगा देने की बात आ जाएगी, वहां के ऊपर जो संतान पैदा होगी उसका नाम होगा धुंधुकारी. और वो इतनी नालायक पैदा हो रही है कि ये पैदा करने वाले को ही खत्म करने में लगी है. देखो आप, कह दिया धुंधुकारी ने माँ से, तेरे पास जितना माल है वो मेरे को सौंप दे, नहीं तो मैं लात मार मार के तुमको मार डालूंगा. ये बेटा था. किसका बेटा था? बोलो, किसका बेटा था? धुंधुली का. और धुंधुली कौन है? अब भी मैंने बताया. धुंधुली कौन? दुर्बुद्धि. जहां दुर्बुद्धि से कार्य किए जाएंगे वहां मार खुद को ही खाना पड़ेगा.
तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे, तुम्हारे लिए क्या तैयार है? खाई। खड्डे से ज्यादा गहरी होती है खाई। जब संत क्यों कहते हैं ये बात? अरे तेरे लिए अगर कोई कांटा बो रहा है तो तू उसके लिए कांटा न बो, तो उसके लिए फूल उगा। तेरा तो फूल का फूल ही रहेगा, वहां को होए त्रिशूल। तेरा तो फूल बोया हुआ है, इसलिए तेरे लिए वो फूल ही रहेगा, लेकिन उस कांटे का क्या बन जाएगा? त्रिशूल बन जाएगा। त्रिशूल यानी 3 जगह से सूल लगेगी उसको। त्रिशूल का मतलब क्या? 3 सूल। 3 जगह सूल होती है जो जाके लगती है, और वो 3 सूल कौन सी है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संतापक त्रयात्मक जो सूल है, वो उस आदमी को चैन से रहने देगी नहीं। इसलिए नारायण, तुम दूसरों के लिए खड्डा तैयार करोगे, अपने लिए क्या तैयार मिलेगी? खाई। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन को इतना पवित्र बना करके रखना है, इतना अच्छा रखना है कि हमारे पास में धुंधली बहन कोई भी उसे आ भी सके नहीं। प्रभु ने प्रार्थना करो कि ये धुंधली बहन तुम्हारा पासे आवती नहीं, तो પછી ધુંધલી બેન નહીં આવશે તો ધુંધુકારી દીકરો પણ આવવાનો નથી, અને ધુંધુકારી નહીં આવશે તો પછી તમને જીવનમાં ગોકર્ણ મળવાનું છે, ને ગોકર્ણ આવશે તો તમારા જીવનનું કલ્યાણ થઈ જવાનું છે. શ્રીમદ ભાગવતના આ મહાત્મ્યમાં સંકેત એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે તમારું જીવન સાર્થક બને, કૃતાર્થ બને, પવિત્ર બને, અને તમે સાચા માર્ગ ઉપર, સારા રસ્તા ઉપર ચાલવા વાળા બનો. એટલા માટે આ બધા આખ્યાનો સંભળાવવામાં આવે છે. જો ભગવતી ભક્તિ બહુ જ દુઃખી થઈ ગઈ. જે ભગવતી ભક્તિને પામીને સંસારના ભક્તો સુખી થઈ જાય છે, એ પોતે ભક્તિ દુઃખી થઈ ગઈ. શા માટે દુઃખી થઈ ગઈ? મોહના લીધે. કોના લીધે? મોહ અગર જ્ઞાની માણસમાં પણ આવી જાય તો જ્ઞાનીને પણ दुखी કરી દે. इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा. निर्माण मोहा, મોહથી પરે બનવું જોઈએ. ભક્તિના 2 દીકરાઓ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એ 2 દીકરાઓ છે. કોઈ ગ્રાહક નથી, એમને સ્વીકારવા વાળો નથી, એટલે વાર્ધક્ય, વૃદ્ધાવસ્થા, ગળપણ આવી ગયું. ગરડી ભક્તિ બી થઈ ગઈ છે. ભક્તિબેન પ્રકટ તો થયા હતા કર્ણાટકમાં, દ્રવિડ દેશમાં, અને વૃદ્ધિ થઈ કર્ણાટકમાં, પ્રૌઢાવસ્થા આવી મહારાષ્ટ્રમાં, અને ગુજરાતમાં આવીને ભક્તિબેન શું થઈ ગયા? ગરડા થઈ ગયા, ડોહા થઈ ગયા, ડોહી થઈ ગયા. અને જ્યારે માણસ ડોહો થઈ જાય ને તો એમાં સ્થિરતા આવી જાય છે. ગળપણમાં શું આવે? પ્રૌઢાવસ્થા સુધી ચાંચલ્ય રહે. મારે આ કરવું છે, મારે તે કરવું છે, મારે આ કરવા સિવાય છૂટકો નથી, અને તું મને હું સમજે હું કરીને બતાડીશ. અરે ઘણા બધા તમે લફડા જુઓ નહીં, પાર નહીં. પણ જ્યારે ઉંમર આગળ વધે, બાળ સફેદ થઈ જાય, દાંત પોતાની જગ્યા છોડવા માંગે, હાથમાં લાકડું આવી જાય, ત્યારે પછી દોડાદોડી થાય ખરી? નહીં ને. પછી શું થાય? સ્થિરતા આવી જાય. તો ભક્તિ ગુજરાતમાં આવીને સ્થિર થઈ ગઈ, એટલે ગુજરાત ભક્તિ પ્રધાન દેશ થઈ ગયો. ગુજરાત શું થઈ ગયો? કારણ કે ભક્તિ આવી ગઈ. પરંતુ દુઃખી છે. શા માટે દુઃખી છે? કે મારા દીકરાઓ બેભાન પડેલા છે. દેવર્ષિ નારદની કૃપાથી
જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાવધાન થાય છે, સચેત બને છે. સંકાદિક ઋષિઓએ ભાગવતની કથાની પ્રેરણા આપી. ભાગવતની કથાનું આયોજન થાય છે દેવર્ષિ નારદ દ્વારા, અને એ કથામાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ચાલીને આવે છે. बड़ा है. एक सम्राट दूसरे सम्राट के चरणों में झुकेगा नहीं, याद रखिएगा. एक राजा दूसरे राजा को नमस्कार नहीं करेगा, टटार होके खड़ा रहेगा. एक रानी दूसरी रानी के सामने ऐसा दांत तो निकाल देगी, लेकिन नमस्कार नहीं करेगी, क्योंकि तू भी राजा मैं भी राजा, कौन बजाएगा बाजा. अब तरसी होय, बे राणीओ भेगी थई के तरस लागेली होय અને બે જો ત્રીજી કોઈ હોય જ નહીં તો એ તો મરી જાય પાણી વગર, क्योंकि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन पिलाएगा पानी, तो मरो प्यासी. બીજું શું છે? सम्राट सम्राट के आगे नहीं झुक सकता है, लेकिन सम्राट परिव्राट के आगे झुक करके गौरव का अनुभव करता है. उस सिकंदर महान को देखिए जिसके राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था. वो सिकंदर महान जिसके राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था, वो भी जाकर के सुकरात के चरणों में नतमस्तक होकर बैठ जाया करता था. सम्राट किसके आगे झुकता है? परिव्राट के आगे. सम्राट किसके आगे झुकता है? परिव्राट, सन्यासी. परिव्राट योग युक्तस्य. एक सन्यासी के सामने, एक विरक्त के सामने, यानी विरक्त के सामने राजा का ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है. हमारे गुरुदेव ने जिनसे विद्या प्राप्त की थी वाराणसी में, शंकर चैतन्य भारती जी महाराज, बहुत ही उच्च कक्षा के संत थे नारायण. वो कभी वाराणसी छोड़े नहीं थे. मेरे गुरुदेव के प्रति उनकी बड़ी प्रीति थी. उनके आग्रह से 2 महीने के लिए नासिक कैलाश मठ में आकर के उन्होंने निवास किया, और इतना अच्छा उनका मन लगा, मेरे गुरुदेव की सेवा से वे प्रभावित हुए कि 2 की जगह 9 महीने रुक गए. अब जहां कोई महापुरुष विभूति आती है तो उसका तेज अपने आप फैल जाता है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. कस्तूरी की सुगंध अपने आप फैलती है, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. स्वामी जी महाराज का प्रभाव बहुत अपने आप फैलने लगा था. तो कपाड़िया सेठ, जो कोहिनूर मिल का मालिक, वो दर्शन करने के लिए नासिक आया कैलाश मठ मेरे गुरुदेव के पास, कि आपके यहाँ कोई बड़े संत आए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ. मेरे गुरुदेव ने कहा कि शाम को 5 बजे वो घूमने को जाते हैं, उस समय तुम खड़े रहना और प्रणाम कर लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता उन्हें कि तुम आए हो तो तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोले. उनका द्वार नहीं खुलता है, वो शाम को ही खोलेंगे 5 बजे. मेरे गुरुदेव ने मुझे बात सुनाई कि विद्यानंद, मैंने अपने आंखों से देखा कि निष्प्रिय से तृणम जगत, निष्प्रिय महात्मा के लिए ये जगत तिनके की तरह से होता है. वो मैंने सामने देखा कि अब्जोपति सेठ, वो कपाड़िया, साष्टांग प्रणाम कर रहा था, और उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया और निकल गए, परवाह नहीं किया उससे और चले गए. सम्राट की स्वयं की संपत्ति एक विरक्त संत के सामने तुच्छ हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, कोई कीमत नहीं रखती है. क्योंकि नारायण, ग्रहण करने में आप अस्वतंत्र हैं, लेकिन त्याग करने में आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं. ग्रहण करने में पराधीनता है. आप आइए यहाँ मेरे पास में और कहिए महाराज चांदी का गिलास में उठा के ले जा रहा हूँ, मैं तुरंत हाथ पकड़ लूंगा, ए भाई क्या जाए છે આ મારો જ તારા બાપનું નથી, તરત જ बोली थी. और अगर मेरे को इसको छोड़ना है तो मैं उठा करके फेंक दूंगा, ले जाओ इसको. आप लेने में अस्वतंत्र है, परतंत्र है, लेकिन छोड़ने में आप स्वतंत्र हैं. और महात्मा ने छोड़ा है,
महात्मा ने हमेशा त्याग किया है, और उस त्याग के सामने, उस स्वतंत्रता के सामने पकड़ने की परतंत्रता हमेशा दुखदायी होती है, पकड़ने की परतंत्रता हमेशा छोटी होती है। इसीलिए वो छोटा हो जाता है राजा उस व्यक्त महात्मा के सामने, इसलिए जाके पकड़ लेता है चरण और कर लेता है प्रणाम, मैं आपको वंदन करता हूं। एक सम्राट कहां झुकता है? परिव्राट के सामने। अब चलें आगे। स्वराट, तीसरी कोटि है स्वराट। सम्राट, परिव्राट और उसके बाद है स्वराट। इस तीसरी कोटि की, उच्च कोटि की जो बात है वो कर रही है श्रीमद् भागवतियां। देखिए, तेने ब्रह्मरदाय जन